जय हिंद एवरीबॉडी। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे एंड पढ़ाई कर रहे होंगे। ऑल्सो अ वेरी वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। सो टुडे वी विल बी कवरिंग टॉप जुलाई करंट अफेयर्स। सो विदाउट एनी अडू, लेट्स स्टार्ट। So first of all, as you can see, your first news is that England to host all three finals of the World Test Championship in 2027, 2029 and 2031. Very, very important. They can ask you कि World Test Championship इंग्लैंड कब कब होस्ट करने वाला है। ठीक है, तो आपको ईयर्स पता होने चाहिए। Then comes your Los Angeles 2028 Olympics. सो अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? इम्पोर्टेंट चीज ये है कि क्रिकेट टू कम बैक इन ओलंपिक्स आफ्टर 128 ईयर्स इन 2020 फॉर्मेट। एंड ये मैन और वुमेन दोनों के लिए होने वाला है। इट इज गोइंग टू टेक प्लेस फॉर बोथ मेन एंड वुमेन। ओके, देन शुभमन गिल, हम सबको पता है कौन है। He has become the first batter ever to hit 400s in his debut Test series as captain. Okay, तो प्लीज इनका नाम याद रखना। इसरो इसरो टू लॉन्च थ्री मेजर नेविगेशन सैटेलाइट्स जिनके नाम है NVS-03, NVS-04 एंड NVS-05 बाय 2026। अब आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से नेविगेशन सैटेलाइट्स जो है वो इसरो लॉन्च करने वाला है, इन विच ईयर ही इज it is going to do that. Then comes your Nahid 2. Very, very important again. They'll directly ask you कि Nahid 2, which was seen recently in news, वो किस कंट्री से रिलेटेड है या कहाँ से है? So it is Iran's communication satellite launched abroad by Russian Soyuz rocket. Okay. Then comes your tracers. Now, what is the full form of tracers? Tandem, reconnection, and cusp electrodynamics renaissance satellites. So it was launched by NASA to study Earth's defense against space storms. Okay, याद रहेगा. They'll only gonna ask you the full form of tracers, or they can ask you trace tracers, which was recently been in news, is a project of either NASA, like they'll give you ऑप्शंस कि नासा का है या फिर यूरोपियन का है, ठीक है, या फिर इसरो का है या फिर आपके जेक्सा का है, तो आपको पता होना चाहिए। Then comes your Bihar. Bihar to host its first ever Indian Open Athletics meet. ठीक है, सी, अब जो भी पहली बार ऐसी कोई चीजें होने वाली होती है ना, वो अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑल्सो वन मोर थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इज दैट recently PM Modi inaugurated a new campus of Nalanda University in Rajgir, Bihar. So बिहार में क्या हुआ है, एक नालंदा यूनिवर्सिटी भी ओपन हुई है। एंड इसका इनॉग्रेशन किसने किया था? आपके मोदी ने पीएम मोदी जी ने। ओके, एंड कहाँ पर हुई है, टू बी स्पेसिफिक, आपके राजगीर में। अगर आप में से कोई राजगीर में से है तो डू लेट मी नो। देन कम्स योर इंग्लैंड। सो विमेन्स फुटबॉल टीम won the UEFA Women's Euro 2025. Very, very important. ठीक है? Then comes your UAE. UAE is going to host 17th Men's Asia Cup Cricket 2025. ठीक है? याद में रहेगा? Then your India is going to host the FIDE World Cup 2025. FIDE. Now you will tell me the full form of FIDE in the comment section. Okay? Then Divya Deshmukh.
She is the first Indian player to win the fight Women's World Cup. Okay, and she is also the fourth women Grandmaster of India. ठीक है, क्या है? फोर्थ women. Now you will tell me in the comment section कि first कौन है. Okay. Then comes your Venus Williams. She is the second oldest female player to win a WTA single matches. Now again you will tell me. वैसे तो आप देख सकते हो कि इनके पिक्चर से ही आप अंदाजा लगा सकते हो, but you will tell me the full form of WTA in the comments. Okay. Now आप आपका सवाल ये होना चाहिए कि if she is the second, then first कौन थी, है ना? So आपकी फर्स्ट थी फर्स्ट वाज योर मार्टिना नवराटिलोवा नवराटिलोवा ठीक है याद रहेगा दोनों नाम याद रखना वैसे तो इन सीरियस दे विल ओनली गोइंग टू आस्क यू वीनस विलियम्स बट AFCAT focus majorly or primarily on your static part ठीक है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड रहता है ऐसी फर्स्ट फर्स्ट वाली चीजों में सो ही माइट मतलब लाइक सी लाइक इंटरेस्टेड हो सकता है फर्स्ट के बारे में जानने में देन कम्स योर ऑस्कर पियस्ट्री he won the Belgium Grand Prix 2025 okay then your Tanvi Sharma and Vinala Kalgotla first ever Indian duo to score two medals in women's single in a single edition of a tournament again see कोई भी चीज ऐसे पहली बार something that is historic is going to be remembered and it is going to be asked in the exams ठीक है तो आपको सीडीएस एफकेट ये एनडीए वगैरह में कहीं ना कहीं देखने के लिए मिल सकता है ओके then comes your military operations so operation shiva so this was launched by the Indian Army a review operation in Jammu for Amarnath Yatra ठीक है it was a review operation then your operation Mahadev it was a joint operation of Indian Army, CRPF, and Jammu and Kashmir Police to neutralize three Pakistani terrorists. So आपने देखा होगा अभी बहुत सारे ऐसे ऑपरेशंस जो थे ना हाइलाइटेड हुए थे आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर ठीक है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कितना पता है कि अपार्ट फ्रॉम ऑपरेशन शिवा जो हमने आपको बताया महादेव या सिंदूर इसके अलावा आपको अभी रिसेंट 2025 में कौन कौन से ऑपरेशंस हुए हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताओगे यू कैन फ्लॉन्ट योर नॉलेज इन द कमेंट सेक्शन देन कम्स योर मिलिट्री एक्सरसाइजेस या ठीक है एक्सरसाइज ड्रोन प्रहार so the Indian Army performed a military drill in Arunachal Pradesh Rayang military station okay so exercise ड्रोन प्रहार में ये पूछ सकते हैं आपसे देन कम्स योर एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र ठीक है सो इट इज वेरी ऑब्वियस कि ये किसके बीच में होती है ये इंडिया और सिंगापुर की बायलेटरल एक्सरसाइज है विच वाज कंक्लूडेड इन जोधपुर रिसेंटली ओके एंड दिस इज एन आर्मी एक्सरसाइज नाउ यू विल आस्क मी द नेवी एक्सरसाइज ऑफ इंडिया एंड सिंगापुर इज सिम्बेक्स ओके सिम्बेक्स देन योर Air Force is India Singapore Joint Military Training Exercise ठीक है सिर्फ इतना कोई फैंसी नाम नहीं है नॉर्मल नाम से ही है जॉइंट मिलिट्री
training exercise. Okay. Then Uttar Pradesh in news. Let's see why Uttar Pradesh is in news. So India's first AI-based road safety pilot project has been launched in Uttar Pradesh. Okay. Then very, very important. Lucknow is set to become India's first AI city. Okay. Now Jharkhand to become first Indian state to launch a mining tourism project. Arunachal Pradesh, on the other hand, is India's first 50 giga, what is it? Gigawatt, okay, geothermal power plant utilizing fully indigenously developed technology, okay. वो मैं कंफ्यूज हो गई थी बहुत ज्यादा आजकल कंप्यूटर कंप्यूटर पढ़ रही हूँ तो गीगाबाइट पढ़ने की आदत हो गई है India's first again, Suhani Shah, first Indian female mentalist to win Best Magic Creator at World Magic Championship. Okay. Goa, India's first indigenous hovercraft for the Coast Guard has started in Goa. Then again very important, GSLV F-16. So this is a launch vehicle carried the Nisar satellite. Now you must know कि निसार क्या है and in the comment section you will tell me the full form, okay, of NISA. Satellite from Satish Dhawan Space Center, Sri Harikota. Okay. Now, your DRDO successfully tested fire the UAV launch precision guided missile. Now, very very important, like very very important. So ULPGM V3 in Kurnool, Andhra Pradesh. Now, how they will ask you? They can ask you कि recently DRDO successfully fired the UAV launch precision guided missile in Kurnool, Andhra Pradesh. The name of that missile. ठीक है? And the other way they can ask you ULPGM. They can give you the name and they'll be like कि अच्छा बताओ ये ना अभी न्यूज में बहुत ज्यादा रही थी तो इसको बनाया किसने इसको किसने टेस्ट फायर किया अभी रिसेंटली तो वो इस तरीके से भी पूछ सकते हैं देन कम्स योर बिमस्टेक अब वैसे तो ठीक है आपके सामने थोड़ा बहुत आइडिया है बट यू विल टेल मी द ईयर जब बिमस्टेक स्टार्ट हुआ था एंड इसमें कितने मेंबर्स हैं और उनके नाम ओके So India hosted the fourth BIMSTEC Disaster Management Exercise 2025. Again, very very important. Okay. Then Meri Panchayat app of the Union Ministry of Panchayati Raj has received an award at the UN World Summit of Information 2025. Okay. Now India ranked. Oh, now see 77th in the Henley Passport Index 2025. Very very important. ठीक है अभी जो लास्ट आपकी इन 2024 the rank was 85th and in 2023 it was I guess 80th. ठीक है so in 2023 we made a little progress but in 2024 the rank again declined but see in 2025 हमारी जो रैंक है वो वापस से थोड़ी बेटर हो गई है ठीक है so it is now 77th. Very important. Okay. Assam state government has launched the foreign language skills scheme that is CM Flight for youth for foreign job. Very very important. Like ये schemes जितनी भी होती है ना आपके serious point of view से बहुत important हो जाती है. So they will directly ask you ये जो flight है एक तो कौन सी गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया है और दूसरा इसका क्या पर्पस है ठीक है क्यों लॉन्च किया गया है तो इसको याद रखना Then comes your India has achieved a 20% ethanol blending target 5 years ahead of its original target of 2030. So मतलब ये था कि इथेनॉल ब्लेंडिंग की बात करी गई थी एंड उन्होंने टारगेट सेट किया था कि हम 2030 तक क्या करेंगे 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग करना शुरू कर देंगे ठीक है लेकिन वो चीज उन्होंने 2025 में ही कर ली है
तो 5 साल पहले ही उन्होंने वो टारगेट अचीव कर लिया, विच इज अ कमेंडेबल थिंग। ओके, तो आज इंडिपेंडेंस डे है और आपको काफी अच्छी चीजें अपने देश के बारे में, अपनी गवर्नमेंट के बारे में जानने के लिए मिल रही है। यू शुड बी प्राउड ऑफ दीज स्मॉल स्मॉल थिंग्स। ओके, देन कम्स योर France became the first G7 country to announce to officially recognize the state of Palestine in September 2025. Okay. Then comes your Odisha state government has launched Shakti Shri to ensure the safety of girl students in college and universities. Again, they can ask you कि ये जो शक्ति श्री है, ये कौन सी गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है? Then comes your Mahila Arogyam Kaksh has been inaugurated in Shastri Bhavan, Shastri Bhavan, sorry, in New Delhi to promote women's well-being in government workplaces. Okay, तो आप देख रहे हो कि बहुत सारे इनिशिएटिव हमारी गवर्नमेंट की तरफ से लिए जा रहे हैं टुवर्ड्स women. Okay, तो कहीं ना कहीं आज इतने सालों बाद हम ये कह सकते हैं कि ये इंडिपेंडेंस डे उन औरतों तक भी पहुंच पा रहा है हु आर नॉट privileged enough, एंड आई जस्ट होप कि ये जो सारे इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं ये उस सारी महिलाओं तक पहुंचे जा सके जो प्रिविलेज नहीं है, ठीक है, एंड जिनको अब जो अभी भी पेट्रियार्कल सोसाइटी के अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस में दबी हुई है। सो जस्ट लेट्स होप फॉर द बेस्ट, एंड देखते हैं कैसे आगे आने वाले सालों में हमें चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं, है ना, पॉजिटिव चेंज अगेन। ओके, देन कम्स योर लुंगफुन रूपी मिजोरम has been designated as monument of national importance by ASI। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर किसी चीज को मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस दी गई है तो ऑब्वियसली इट इज important। So Kerala has introduced the CYTB skin test to detect latent tuberculosis infection under the National TB Elimination Program. Okay. Then comes your Delhi government has increased the rewards for Olympic and Paralympic winners under Mukhyamantri Khel Prosahan Yojana। I would say it's a very very good initiative. Why? Because usually क्या होता है ना कि ये जो इन लोगों को फेम मिलता है, ओ वो भी ना, देखो हमारे ओलंपिक पैरा ओलंपिक्स में इतने सारे लोग जो है हमारे देश से इतने सारे बंदे पार्टिसिपेट करने जाते हैं, ठीक है, कुछ मेडल जीतते हैं कुछ मेडल नहीं जीतते, कोई बात नहीं, पर वहां तक पहुंचना भी एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एंड जो मेडल जीत भी रहे हैं उनमें से भी रिकॉग्निशन कितना को मिलता है ये आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं, ठीक है। तो अगर रिकॉग्निशन इज स्टिल अ सेकेंडरी थिंग, बट अगर उनको आप यू नो थोड़ा और अप्रिशिएट कर सको फॉर देयर कंट्रीब्यूशन इन स्पोर्ट्स, तो ये बहुत बहुत अच्छी बात है ना। देन कम्स योर Bihar. Again, Bihar is in news. Bihar has become the first Indian state where no polling station will serve more than 1200 voters. Okay. इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स आप पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट्स आप जो है वो हमें कमेंट्स में लिख के बता सकते हो। वैसे तो वी डू नॉट यूजुअली go into these political things, but healthy debate या healthy discussion is always welcome। What do you think कि इससे क्या पॉजिटिव चेंजेस आपको देखने के लिए मिलेंगे, और if there's any negative aspect of it, then also you can enlighten the people about it। Okay, now NWA 16788, a Martian meteoroid is the largest piece of Mars ever found on Earth। ठीक है, अब कुछ मार्स से टुकड़ा मिला है तो अपने आप इम्पोर्टेंट हो जाता है ना। देन योर हॉर्नबिल, सी एक आपका हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है ना, तो आपके एफकेट में बहुत बार ये सवाल आया है, आपके सीरीज में भी ये काफी बार सवाल आया है, हॉर्नबिल फेस्टिवल इज रिलेटेड टू विच स्टेट? किससे होता है? कॉमन में बताओ मुझे, ठीक है, किससे होता है? नागालैंड से होता है, ठीक है। A dedicated hornbill conservation center has been inaugurated at Annamalai Tiger Reserve, Coimbatore। Okay, then
A rare long-billed bush warbler bird was spotted in Ladakh. Okay. Then your Typhon Block 4, very very important. Okay, very very important. मतलब ये तो आप देख लो, आपको या तो एस्केट में मिल जाएगी, या आपको सीडीएस में मिल जाएगा, या आपको एनडी में देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है, पर मिलेगा जरूर. Is a hypersonic ballistic missile developed by Turkey or Turkey. Now, a Samudra Prachet is a pollution control vessel built by Goa Shipyard Limited for the Indian Coast Guard. Then comes here, China has initiated the construction of the world's largest hydropower dam, the Mochu Hydropower Station on the Yalung Sangpo River. Okay, it is important. लोकेशन याद में रखना, ये किसका प्रोजेक्ट है ये याद में रखना, ठीक है. एंड ये कहाँ पे, ये जो रिवर हमने आपको यहाँ पे लिखाई है, मेंशन करा है, प्लीज कीप दिस इन योर माइंड, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है. Then comes here, a replica of the Ashok pillar has been unveiled at Vaskudu Sri Shubhuti Virayara. Okay, विहारया. तो अशोक पिलर का एक रेप्लिका जो है वो अभी अनवेल किया गया है. So according to the report of Morgan Stanley report, India will overtake Japan and Germany to become the third largest economy in the world by 2028. So see, अभी क्या है कि इंडिया ने जापान जापान को तो ओवरकम कर लिया, और क्या बन गया आपका, जो है ये फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है. पर अब ये बात चल रही है कि जापान को भी ओवरकम कर लेगा, जर्मनी को भी ओवरकम कर लेगा, और थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा. तो अभी रिसेंटली जो है वो डिबेट्स चल रही थी कि जापान और जर्मनी का जो जीडीपी पर कैपिटा इनकम है, इट इज वेरी वेरी हाई, ठीक है. एंड वहीं पे हमारे इंडिया का जीडीपी पर कैपिटा इनकम देखा जाए तो वो बहुत ज्यादा कम है कंपैरेटिवली. लाइक अगर मैं बात करूँ, तो जापान का इज अराउंड 33,000, ठीक है, वेर एज इंडिया का तो कुछ 2-3 हजार ही है. आप मुझे एग्जैक्ट फिगर भी मेंशन कर सकते हो कमेंट सेक्शन में. तो यू नो काफी कम है अगर देखा जाए. तो अगर इकोनॉमी में हमने उन्हें पीछे छोड़ भी दिया, बट स्टिल हमारे लोगों के पास नहीं है, ठीक है. एंड ये सिमिलर प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया फेस कर रहा है. अगर आप एक्चुअली में चेक करने जाओगे तो जो अमेरिका है, जो फर्स्ट यू नो लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड की, वो भी सेम सिचुएशन फेस करता है, ठीक है. देन कम्स योर इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इज commemorating the birth anniversary of Rajendra Chola I by celebrating Adi Tiruvuthirai festival. Okay. Then comes here 24, Gitanjali Sri, very very important. She is a very good author, wonderful author, and इनको पहले भी काफी ज्यादा अवार्ड्स मिल रखे हैं, ठीक है. तो दिस नेम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. गीतांजलि श्री won the Pen Translate Award 2025 for Once Elephant Lived Here, English translation by Daisy Rockwell. Then comes your WHO launched the Global Space Specs 2030 to provide affordable eye care access for all by the year 2030. Then comes your Indian Railway successfully tested India's first hydrogen powered coach at Integral Coach Factory, Chennai. Then your NCRT introduced curriculum modules on Group Captain Subhanshu Shukla and Operation Sindoor. A very, very, good initiative, I would say. बहुत अच्छी चीज है. People should be the new generation should be aware about these things, and ये ही एक I think source of motivation और inspiration बन सकता है एक younger generation के अंदर. Then comes your India to host the 33rd UN, very very important, very very important, 33rd UN Climate Change Conference, COP 33 in 2028, very very important. Okay,
Thailand and Cambodia signed a ceasefire agreement named the Truce Agreement. Again, very important. ठीक है, पूछ लेगा ट्रूस एग्रीमेंट किसके बीच में साइन हुआ है, ठीक है। तो इंडिया नहीं मार्क करके आ जाना कि अरे इंडिया न्यूज में रहती है, इंडिया ही होगा। इट इज थाईलैंड एंड कंबोडिया। देन योर टर्की और तुर्की has unveiled its most powerful non-nuclear bomb named Gaza. Again, पढ़ते रहो इस पे स्टार मार्क, बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड फॉर श्योर आपको ये पेपर में देखने के लिए मिलेगा। संजय सिंघल has been appointed as the next Director General of the सशस्त्र सीमा बल, आपके एसएसबी का, ओके। देन प्रिंस अल वलीद known as the sleeping prince of Saudi Arabia passed away, ओके। तो स्लीपिंग प्रिंस भी होता है। आप में से भी बहुत बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि हम भी स्लीपिंग प्रिंस बन सकते हैं, तो बन सकते हैं, पर पढ़ लो पहले। चलो, सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा स्पर्श पेंशन, ओके। द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज लॉन्च द स्पर्श। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ स्पर्श? द सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा, ठीक है। देन कम्स योर आपका नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी नालसा हैज लॉन्च वीर परिवार साहित्य योजना टू स्ट्रेंथन लीगल एड फॉर डिफेंस पर्सनल एंड their families. Then comes your foot and mouth disease is a severe, highly contagious viral disease primarily affecting cloven hoofed animals like cattle, sheep and pigs. Okay, ऐसी कोई नई डिजीज भी है जो काफी कंटेजियस है, तो ध्यान में रखना। Then Maharashtra will observe 7th August as Sustainable Agriculture Day in honor of M.S. Swaminathan. Who is M.S. Swaminathan? M.S. Swaminathan is the father of Green Revolution. Father of Green Revolution. Okay. Then Delhi news. New Delhi hosted the first ever Armed Forces National Conference, SHAPE 2025. Now again, the full form of SHAPE is your Sustainable Hospital Architecture, Planning, Infrastructure and Equipment. Delhi has been named as the world's most affordable city for students in the QS Best Student Cities ranking 2026. Okay, this seems interesting. This data seems interesting. कि world's, not even India's. It is world's most affordable city for students. Okay, तो जो भी दिल्ली में रह रहे हैं, प्लीज मेरे को बताना if it's the correct thing, और मतलब करेक्ट है ये या फिर ऐसी ऐसी हवा में बातें कर रहे हैं, ठीक है। ग्राउंड रियलिटी पता ही नहीं है, तो आप जो लोग दिल्ली में रह रहे हैं, आप ग्राउंड रियलिटी बताना हमें। New Delhi has been named as the world's most polluted city after Meghalaya's uh, Brinihyat. Okay. Then 14th Vice President Jagdeep Dhankar. So अभी हम सबको पता है he was so much in news. Why he was in news? Because he has resigned from his office, from his vice presidential position. Okay. So he became the third vice president after V.V. Giri and R. Venkat Raman to resign from office. Okay. He was so the acting vice president, deputy chairperson of Rajya Sabha, Shri Harivansh Narayan Singh. ठीक है, मतलब अब देखो, कभी भी आपकी जो पोस्ट वेकेंट होती है, तो जैसे प्रेसिडेंट की अगर पोस्ट वेकेंट हुई, तो आपके जो एक्टिंग प्रेसिडेंट हो जाते हैं, मतलब जब तक इलेक्शंस वापस नहीं हो रहे हैं, जो जो कि अगर आप पॉलिटिक्स में पढ़ते हो कि 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इलेक्शन करवाने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो ये तब तक कौन उस चीज को, उस पदवी को हैंडल करेगा? तो वाइस प्रेसिडेंट करता है। अब जब वाइस प्रेसिडेंट नहीं है तो कौन करेगा? तो डेप्यूटी चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, जो कि अभी इस टाइम पे कौन है, श्री हरिवंश नारायण सिंह, वो करेंगे, ठीक है। ही विल बी द एक्टिंग वाइस प्रेसिडेंट, तो आपको पता होना चाहिए। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो आपका चेयरमैन होता है, ठीक है, राज्यसभा का, वो कोई और नहीं होता, वो कौन होते हैं? आपके वाइस प्रेसिडेंट ही होते हैं। तो आर्टिकल 91, कुछ आर्टिकल देख लेते हैं। आर्टिकल 91, व्हेन द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट फॉल्स वेकेंट द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा टेक्स द चार्ज। तो अगर आपसे पूछे कि अच्छा ठीक है, अब एक्टिंग वाइस प्रेसिडेंट जो है वो डेप्यूटी चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा बन रहे हैं, सॉरी, तो अब वो मतलब कैसे ऐसे ही बन रहे हैं, कुछ तो होगा ना।
मतलब कुछ तो उसके पीछे लॉजिक होगा, कुछ तो उसके पीछे कुछ प्रोटोकॉल्स होंगे, रूल्स होंगे। तो वो रूल क्या है? आपका आर्टिकल 91 है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का। हमारे लिए रूल्स क्या है? हमारे देश के लिए रूल्स क्या है? इट इज कॉन्स्टिट्यूशन। So Article 67A, the sitting vice president must write his resignation letter to the president. Again, very very important. अच्छा देखो, अब सी, अब एग्जामिनर्स का ना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाएगा। जर्नली दे आस्क यू, दे आर इंटरेस्टेड इन नोइंग अबाउट कि आपको प्रेसिडेंट के बारे में कितना पता है। ठीक है, आप प्रीवियस ईयर पेपर्स में उठाओगे तो आप देखोगे कि प्रेसिडेंट से काफी सवाल आए हैं। लेकिन क्योंकि अब वाइस प्रेसिडेंट जी जो है हमारे काफी न्यूज में रहे हैं, उनकी पदवी बहुत न्यूज में रही है, तो इट इज बट ऑब्वियस कि वो वाइस प्रेसिडेंट के बारे में आपसे सवाल पूछ सकते हैं, जस्ट टू नो कि आप कितने क्यूरियस हो। आपने जब ये न्यूज पढ़ी तो क्या आपने जाके चेक किया कि वाइस प्रेसिडेंट के क्या क्या क्लॉजेस होते हैं, क्या क्या आर्टिकल्स हैं, वाइस प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होता है, क्या प्रोसेस होता है, अगर वाइस प्रेसिडेंट रिजाइन कर रहा है तो उसको क्या प्रोसेस होता है। ठीक है, तो अगर वाइस प्रेसिडेंट रिजाइन कर रहे हैं तो वो अपना रेजिग्नेशन लेटर किसको लिखेंगे? प्रेसिडेंट को लिखेंगे। अगर प्रेसिडेंट रिजाइन कर रहा होता है तो वो किसको अपना रेजिग्नेशन लेटर लिखेगा? दिस यू विल टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, सो थैंक यू सो मच। बट कुछ एक दो न्यूज और है विच आई वुड लाइक टू टेल यू। वन इज प्रोटोस्टार। नाउ why this is important? So this was recently seen in news. So this is the earliest stage of, अभी ये न्यूज में दिखा है, ठीक है, दिस इज द अर्लीस्ट। अभी होता क्या है, दिख तो क्या, बट ये होता क्या है? तो दिस इज द अर्लीस्ट स्टेज ऑफ स्टार फॉर्मेशन। मतलब कोई नया तारा बन रहा है, प्रोसेस में। ऑल्सो इट लास्ट फ्रॉम योर 1 lakh, it lasts from 1 lakh to 10 million years, depending on the star's mass. ठीक है, then there's this country East Bhutan. Now why this country was in news? Because US deported 5 serious criminals. So your US say deported 5 serious criminals, okay, to East Bhutan. ठीक है, नाउ थोड़ा सा ईस्ट स्वातिनी के बारे में देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि एक नई कंट्री है जो न्यूज में रही है, तो आपसे एफकेट में भी सवाल बन सकता है, सीडीएस में भी सवाल बन सकता है। तो दिस इज अ स्मॉल लैंडलॉक कंट्री इन सदर्न अफ्रीका। लैंडलॉक कंट्री है इन सदर्न अफ्रीका। ठीक है, अगर इसकी कैपिटल की हम बात करें, और ऑल्सो इट इज सराउंडेड बाय, जैसे अभी आपका जो है ये इजराइल पैलेस्टीन वगैरह काफी न्यूज में रहा था, तो आपसे पूछ लिया था कि इनके नेबरिंग कंट्रीज क्या क्या है। ठीक है, तो आपसे पूछ सकते हैं। तो योर ईस्ट पातनी इज सराउंडेड बाय साउथ अफ्रीका एंड मोजाम्बिक। ओके, देन इसकी कैपिटल क्या है? कैपिटल ऑफ ईस्ट पातनी, कैपिटल है आपकी एम्बाबेन। ओके, एंड इट इज अफ्रीकाज लास्ट एब्सोल्यूट मोनार्की, जिसका किंग था, इसका किंग क्या था, कौन था? किंग मस्वाती थर्ड। ओके,
देन ऑल्सो एक और चीज मैं आपको बता देती हूँ, आपका ये जो कामा चटका पेनिनसुला है ना, रशिया में, कामा चटका पेनिनसुला, अभी यहाँ पे अर्थक्वेक आया था, ओके, एंड कितने मैग्नीट्यूड का, 8.7, ओके, सो दैट्स ऑल। प्लीज इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, पढ़ लेना। काफी सारी ऐसी न्यूज हैं जो आपको डायरेक्टली पेपर में देखने के लिए मिल सकती हैं। सो डू योर रिवीजन प्रॉपरली। आपका टेस्ट होगा, उस टेस्ट को अच्छे से अटेम्प्ट करना। जो भी चीज आप गलत करते हो उसको अपनी नोटबुक में लिख लेना, उसको रिवाइज कर लेना, एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। ठीक है, एफकेट आने वाला है। प्लीज प्लीज वर्क वेरी वेरी हार्ड। आई ऑलवेज से कि एफकेट इज वन ऑफ द मोस्ट easiest एग्जाम टू क्रैक, लेकिन अगर आप मेहनत नहीं करोगे, आप उसे लाइट ही लोगे कि अरे ठीक है हो जाएगा, मैम ने बोल दिया, या जो भी है, ये तो बहुत इजी एग्जाम है, कर लूंगा मैं। अगर इस एटीट्यूड के साथ रहोगे, अगर आप मेहनत नहीं करोगे, तो ये भी क्लियर नहीं होगा। इट विल बिकम द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम फॉर यू, ओके। सो कीप स्टडिंग एंड जय हिंद।